warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma inna Allaha kana aliman khabira. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. تمام تعریف تا حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت بیاسن بے شمار درود و سلام بذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آل استامت. پتمس درسس مز پوڑ اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کرے مردن ہند یزن دائرہ کار چھ گھرس مز تمچ تہ وضاحت اور خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کی بھی وضاحت ہو گئی تھی. اور ضمن کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یم زن صالح خواتین آسن یا صالح عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی صفات بھی بیان کی گئیں. اس کے بارے میں کہا گیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ کہ نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جس چیز کی حفاظت کرنے کی ان کو اللہ نے بہرحال تاکید کی ہے، یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں اور خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. بہرحال امپت پڑھو ایسے کہ اگر میاں بیوی میں کبھی اختلاف ہو جائے تو ان اختلافات کی دو شکلیں ہیں. ایک چھوٹا موٹا اختلاف اگر ہو جائے تو اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پر صبر کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کبھی آپ کسی چیز کو خبیث سمجھتے ہو یا اس کو کمتر سمجھتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں آپ کے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے. اور کبھی آپ کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کوئی خرابی ہوتی ہے. ام پتہ ون کہ اگر کوئی بڑی سرکشی یا بڑی نافرمانی عورتوں سے ہو جائے تو ان کو سنبھالنے کا یا اس کو دور کرنے کا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں نسخہ بیان کیا تھا. پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ان کو سمجھا بجھا کر واعظ و نصیحت سے بہرحال اس بغاوت سے یا اس نافرمانی سے ان کو باز رکھو. اگر اس سے بھی معاملہ نہ سدھر جائے تو بہرحال ان کے بسترے ان سے اپنے سے الگ کر دو، یعنی ان کو اپنے کمرے سے الگ کر دو. اور تیسری بات، اگر اس سے بھی باز نہ آ جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ آپ ان کو ہلکی مار سکتے ہیں، یعنی ایسی مار جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑے. بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تم چھ لیکن ات آیتی کس تفسیرس مز کہ اصل میں تو یہ حکم مارنے کا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور ات متعلق وہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریاہ احادیث تھے جس میں عورتوں کو مارنے سے بہرحال منع کیا گیا ہے. ام پت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اس کے بعد اگر وہ اطاعت پر کاربند ہو جائیں، یعنی اگر وہ آپ کی فرما بردار بن جائیں، وَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو ان پر کوئی بہانہ تلاش مت کرو، یعنی ان کو مت ستاؤ، بلکہ پہلے کی طرح ان کو اپنے ساتھ خوش و خرم رکھو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بھی بڑا ہے، یعنی آپ کو جو ضمنی طور پر بڑائی یا حکومت عطا کی گئی ہے گھر کی، یہ نہ سمجھو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم پر کوئی نگراں نہیں ہے، بلکہ اللہ آپ کے اوپر بھی نگران ہے اور وہ جانتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو. یہ پہ میں ام سب ریپیٹ کروں یہ کیونکہ ایک تو بہت سے لوگ کل آئے ہی نہیں تھے، دوسرا اب جو آج کی آیت ہے اس کا تعلق اس پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے. ام پچ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمان وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اس کے باوجود بھی اگر آپ کو خوف ہو کہ میاں بیوی کی یہ انبن جو ہے یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، یعنی نہ تو واعظ و نصیحت کارگر ہوئی، نہ تو ان کو بستر سے الگ کرنا کارگر ہوگا، نہ تو مارنا بہرحال کارگر ہو گیا،
गोडनेथ चीजन अल्लाह तबारक व तआला व्यसन छे कि घर का जो मामला है, मियाँ बीवी के बीच में जो इख्तिलाफ है, ये घर में ही सुधर जाए या ये घर में ही इसका कोई हाल निकल जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते व इन खिफ्तुम, बस अगर आपको इस बात का खौफ हो, शिकाका बैनिहिमा, कि इनकी ये नाचाकी जो है ये आगे ही बढ़ रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, फबअसू हकमम मिन अहलिही, तो क्या करो कि आप मर्द के अहल में से यानी मर्द के खानदान में से एक जी शऊर और एक अकल रखने वाले आदमी को, यानी यमिस पेंच वन खड़ पेंच यमिस अकल शऊर और फैसला करने की सलाहियत आए, उनके अहल में से, उनके खानदान में से, यानी मियाँ के खानदान में से एक शख्स को हकम बनाओ, वह हकम मिन अहलिहा, और औरत के खानदान में से एक हकम लाओ। यानी गौर अल्लाह तबारक व तआला की ये कोशिश थी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ये हुक्म किया कि जो घर का जो ये भेद है ये घर में ही बहरहाल सुलझना चाहिए। अगर न अति कामयाबी सपदे के तब बहरहाल आप अदालतों का दरवाजा मत खटखटाओ या आप कोतवाल के पास मत जाओ, बल्कि अम पे करो दयम कोशिश यह कि तुम करो मर्द तम सद खानदान मज करियो असल जानन वोल और मामलो फहम यमिस फैमिली यमिस अल्लाह ताला अता कर, उनमें से एक को आप मुंतखब करो, और औरत के खानदान में से भी एक शख्स ऐसा मुंतखब करो जिसको मामला फहमी की बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत अता की हो। अच्छा, इससे ये मतलब इस आयत से ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि अकई इंसान होड़ अन तो अकई इंसान होड़ ना, बल्कि यहाँ से भी एक दो आदमी आ सकते हैं, यहाँ से भी एक दो आदमी आ सकते हैं, यहाँ से भी एक ग्रोह आ सकता है, यहाँ से भी एक ग्रोह आ सकता है। फिर क्या करेंगे, मिन आलिया इन युरीदा इस्लाह, तो ये मिलजुल कर आपस में इन मियाँ बीवी के मामला को सुलझाएंगे। यानी अगर खानदारस तो खानदारी पानवे का अनबन गई, गौड़ कोशिश कर ये पानवे करें बच रफा दफा, अगर अम सही मामल सुलझो न कह, अल्लाह ताला फरमान तेल करो महनी सद यानी खानदार सद खानदान में तम अन का फहम वोल इंसान, और औरत के खानदान में से भी कोई फहम वाला इंसान लाओ, ताकि वो मिलजुल कर इस मियाँ बीवी के जो इख्तिलाफात हैं इनको दूर करें, और वो देखें कि महनी खाता क्या न खातून को ये जन तमिस खाता, या कभी ऐसा भी हो सकता है थोड़ी सी गलती मियाँ की भी होती है, थोड़ी सी गलती जो बीवी की भी होती है, तो ये दोनों फरीक मिलजुल कर बहरहाल इनको समझाएंगे बुझाएंगे, और अगर कोई मामला होगा बहरहाल उस मामले को भी ये तय करेंगे। बहरहाल ये इस्लामी हुक्म और ये इस्लामी मिजाज है कि इस्लाम छुन व्यसन कि लकटन लकटन मामलातन पे क्या गई अदालतन हिंद दरवाज खटकावन, लकटन लकटन मामलन पे क्या गई कोतवाली गसन, बल्कि इस्लाम का मिजाज ये है कि ये मामला जो है ये घर में ही सुलझने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ये मामलात एक खानदान में सुलझने चाहिए। वाइन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा, पस अगर आपको इस बात का अंदेशा हो, इस बात का खौफ हो कि मियाँ और बीवी के बीच में अनबन है और ये बढ़ती ही जा रही है, फबअसू, तो आप तय करो हकम मिन अहलिही, मर्द के खानदान में से एक हकम यानी एक ज़ीशूर आदमी, मिन अहलिहा व हकम मिन अहलिहा, और एक ज़ीशूर आदमी या कुछ आदमी औरत के खानदान में से भी, ताकि वो मिलजुल कर क्या करे, इस मामले का कोई हल निकाल सके। इन युरीदा इस्लाहा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं पास अगर ये इस्लाह चाहते हूं। इससे दो माना मुफस्सिरीन ने मतलब लिए हैं, एक तो ये माना है मर्द और औरत के लिए भी, यानी अगर यम ज़बत वेसन पानवे इस्लाह करन तो अल्लाह ताला फरमाए युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह जरूर ब जरूर इनको मिलाकर रहेगा, यानी अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, और अल्लाह तबारक व तआला इन फरीकों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला इनके बीच में सुलह करवाएगा। मगर शर्त क्या है, शर्त यह है कि मियाँ और बीवी ये आपस में सुलह कराना चाहते हूँ और ये आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हूँ। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला फरमान, तब अल्लाह तबारक व तआला के फजल से, अल्लाह तबारक व तआला के चाहने से बहरहाल ये इनके बीच में सुलह करवाएंगे। और दूसरा मतलब इसका यह भी मुफस्सिरीन ने लिया है, इन युरीदा इस्लाहा, कि ये जो फरीक आपस में इस्लाह करने के लिए आए, यानी यमजन में खड़पेंच या पेंच बने, इनको कहा जा रहा है कि आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हमें इस्लाह करनी है। अत गछ आसन हुक्म चलान या अत गछ आसन पन खड़पेंची चलान कह अंदेश, बल्कि सिर्फ ये नीयत होनी चाहिए कि हमें इस लड़के और लड़की को या मियाँ और बीवी को आपस में मिलाना है। तो बहरहाल यह अथन जिम्मेदारी बयान करने कमन हज, मियाँ और बीवी की भी, कि अगर वाकई आप मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इस्लाह चाहते हैं, तो बहरहाल इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला आपको मिलाकर रहेगा। और उन हकम को भी ये नसीहत की गई है कि आपकी नीयत
आपका इरादा ये होना चाहिए कि हमें इन दोनों को मिलाकर रखना है। बहरहाल तो याद सूरह बकरा मज पोड़मुत कि जब मियाँ और बीवी के बीच में शदीद इख्तलाफात हो जाए तो फिर आखिरी हद उसकी तलाक है। मगर तथ्य करे में अर्ज और हमने पढ़ा है कि तलाक जो है ये कोई पसंदीदा अमल नहीं, अगरचे ये हलाल है मगर हलाल चीज़ों में से जो सबसे मबगूज चीज़ है और जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है वो कौन सी है? तलाक। तवे आ ये मन कि अगर ये मियाँ और बीवी आपस में इस्लाह चाहते हैं और इन हकम को भी कहा गया कि आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि हम इनके बीच में क्या करेंगे? इस्लाह करेंगे। युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह तबारक व तआला इनके बीच में कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अत मज फिकी कथ याद, अगरचे वो आम लोगों के लिए नहीं है मगर बहरहाल बह वन कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इस आयत के बीच में मौक़िफ़ ये है कि यम हसा दोन फरीकन पानवे इन कम हकम बनान, यानी अल्लाह बचाए किसी औरत और किसी मर्द के बीच में इख्तिलाफ हो गया। अब यहाँ से भी कुछ लोग हकम बन के आ गए और उनके खानदान में से भी कुछ लोग हकम बन के आ गए। बहरहाल इमाम अबू हनीफा फरमान कि अगर ये मियाँ और बीवी इन दोनों फरीकों को इख्तियार देते हैं कि मेरी तरफ हसा छुता इख्तियार, मर्द कहता है कि मेरी तरफ से आपको इख्तियार है कि क्या फैसला आप करेंगे, और औरत भी अपने हकम को कहती है कि मेरी तरफ चीज़ें इख्तियार की ये फैसला से करे तिश में कबूल, तो इमाम अबू हनीफा का इसके बारे में बहरहाल मौक़िफ़ है कि अगर ये इस्लाह करते करते बहरहाल नाउमेद हो जाए और अब ये फरीक बैठकर ये तय करें कि वाइन ऐसा कह ती सूरत मन मिलने के और ये तलाक का मुतालबा करते हैं, यानी युजन मर्द का फरीक जो है या हकम युजन अगर वो तलाक का मुतालबा करता है या तलाक देता है तो ये तलाक वाक़या हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने वकील किसको बनाया? मर्द ने इन हकम को अपना वकील बनाया है। मगर इमाम अबू हनीफा फरमान ये तब तलाक वाक़या होगी जब मर्द ये उनको इजाज़त देगा कि जो फैसला आप करेंगे कि वो मुझे राज़ी और उस पर मैं बहरहाल मुतफ़िक़ हूँ। अलबत्ता अगर वो इनको ये इजाज़त दे कि हाँ फैसला करो आप कि तय करी इस पर, मगर मेरी तरफ से तलाक की इजाज़त नहीं है, तो बहरहाल तलाक वाक़या नहीं होगी। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और बाकी फुक़हा तुम वनन हकम तो बनाया ही इसलिए जाता है कि इसके बीच में कोई फैसला हो जाए, अगर इस्लाह हो गई तो फबिहा तो बहुत खूब, अगर इस्लाह ना हो जाए, अगर ये फरीक आपस में तलाक पर ही पहुंच जाए कि नसा यमन गस तलाक ही गसी, चाहे मर्द या औरत इनको इजाज़त दे या न दे तो बहरहाल तलाक वाक़या हो जाती है। अलबत्ता सीरत और अहादीस पर जब नजर दौड़ाते हैं तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ही मसलक जो है वो ज्यादा करीबुल सुन्नत और वो हदीस के ज्यादा करीब लगता है। बहरहाल या ये थनस वन कि पहले तो उनको नसीहत करो, अगर नसीहत से भी बाज ना आ जाए तो उनका बिस्तर अलग करो, अगर उससे भी बाज ना आ जाए तो उनको हल्की मार मारो, तो इससे भी बाज अगर ना आ जाए तो फिर हकम बनाए जाएंगे एक औरत के ये तरफ से और दूसरा मर्द की तरफ से, और उन्हें कहा जा रहा है कि आप नीयत साफ रखिए कि हमें इनके बीच में इस्लाह ही करनी है, और अगर ये नीयत हो तो अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल इनकी इस्लाह करेगा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अलीम जानने वाला भी है और खबीर बाखबर भी है। ये दोनों को कहा जा रहा है। मैं वो ओतर आयतुक लास्ट टुकड़े इसका जोड़ आयत के पहले टुकड़े के साथ होता है। यहाँ इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा ये इस जोड़े को भी कहा जा रहा है, यानी मर्द और औरत को भी कहा जा रहा है और उन हकम को भी कहा जा रहा है, यानी ए हकम यम जन बने में छू आप खूब जान लो कि तहन अत क्या गड़बड़ करू इन पन किसी फरीक से रुश्वत लेकर, किसी फरीक से आप कोई मुआवजा लेकर उसके हक में फैसला कर दो, नहीं, बल्कि इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला भी है और बाखबर भी है कि आप किस नीयत से इनके बीच में इस्लाह करने के लिए आए हैं और आपने इनके बारे में किस तरफ से काम लिया है। और मियाँ बीवी को भी कहा जा रहा है कि वाकई अगर आपकी नीयत सही है कि हम जुड़ना चाहते हैं, हमारे बीच में इस्लाह होनी चाहिए तो ठीक है, वरना आपके दिलों में ही अगर चोर हो, औरत ये मुतालबा करती है कि कुन पे अमिस नश आज़ादी गई, या मर्द ये चाहता है कि कुन पे गई बलाय मान नख वसई, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा, खूब जान लो अल्लाह आपकी नीयतों को भी जानता है और आपके दिलों के हालों से भी बाखबर है कि आपकी इसमें नीयत क्या है। बहरहाल यमो आयतो तल फिक्र तारन इस आखिरी कथ बह आज के दरसस में, इन आयात से हमें दो इंपॉर्टेंट सबक मिलते हैं। पहला सबक यह मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला कसा अहमियत दिसमज खानदानी निज़ामस, यानी घर के निज़ाम को कितनी अहमियत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है,
और दूसरी नसीहत हमें ये मिलती है इसमें कि खानदानी निज़ाम घर निज़ाम सही अंदाज में चलाने खतर जरूरी कि अत गह सरबराह आसन यिथ पार्ट कुन इदारस चलाने खतर सरबराह यिथ पार्ट कुन इंस्टीट्यूशनस कुन फैक्ट्री चलाने खतर सरबराह जरूरत इथे पार्ट घर चलाने खतर ते सरबराह और वह सरबराह कौन होगा बहरहाल उसका फैसला खुद अल्लाह ने किया है कि वह सरबराह कौन होगा मर्द होगा और ये हंग मंगे मर्द के बल्कि मर्द की जो सलाहियतें हैं और मर्द को जो अल्लाह तबारक ताला ने कुव्वत फैसला की जो सलाहियत दी है इसकी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने मर्द को क्या रखा है हकम रखा है अवै रवायतन मज आमुत फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कि वो कौम कभी भी कामयाब नहीं होगी और वो कौम कभी भी फलायाब नहीं होगी जिस कौम की जिम्मेदारी किसी औरत के सुपर्द हो यानी सो कौम लबन जहन फला यथ कौम जन सरबराह क्या कह जनान अवै इस्लामी निज़ामस मज कि इस्लामी निज़ाम में कोई भी औरत खलीफा नहीं बन सकती है साहब अगर वो कितनी भी काबिल हो अगर वो कितनी भी सलाहियत वाली हो मगर बहरहाल वो सरबराही ममलिकत नहीं क्यों क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत से ये पता चलता है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा कि निगरानी और निगहबानी की असल में किसको जिम्मेदारी की गई है मर्द को दी गई अगरचे वो किसी एक फील्ड में काबिल हो सकती है लेकिन हुक्मरानी करने के लिए जो जुमला अवसाफ है बहरहाल वो औरतों में नहीं अवश्य वुशन अल्लाह तबारक ताला ने कमो बेश 1,24,000 पैगंबर भेजे मगर इन तमाम पैगंबरों में एक भी औरत नहीं है क्यों क्योंकि औरत का ये नबूवत मनसब ये डिमांड करता है हुक्मरानी भी ये डिमांड करता है यजन निगरानी भी और वो सलाहियत असल में किस में होती है मर्द में ही होती है इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने तमाम अंबिया यम जन तुम क्या वो मर्दों के कबील से होते हैं वो औरतें नहीं होती हैं ये तो एक हमें इसमें से पता चलता है दयम का ये इस्लामी मिजाज ये भी है कि किसी इदारे का सरबराह भी हत्तुल इम्कान कोशिश कि वो भी कौन होना चाहिए वो मर्द ही होना चाहिए क्योंकि मर्द ही हुक्मरानी और फैसला लेने की सलाहियत रखता है और दयम आव अत मज वन तरबियत आला दस्तूर आ दिन कि आख मर्द कित पे खानदारी से सलूक कर यानी उसके साथ कैसे रहम के साथ मामला करे और औरत को भी ये कहा गया कि आप कैसे एक मर्द की सबसे सालिया औरत बन सकते हैं आपको उनका यजन तिहद फरमा बरदार रोजन और आपको अपनी इस्मत की भी हिफाजत करनी चाहिए अल्लाह तबारक ताला से मगो दुआ कि अल्लाह तबारक ताला दीन ऐसी आयातन पर अमल करो तौफीक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।